Morning everyone, 12th Commerce English Medium Economic chapter number 4. Now the concept is cash reserve ratio. Under the RBI Act 1934, all commercial banks have to keep certain minimum cash reserve with the RBI. Initially CRR was decided to be 5% on the demand deposit and 2% on the time deposit. Means what? As per the RBI Act 1934, जो बैंक्स हैं उनको अपना कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। शुरुआत में ये 5% था डिमांड डिपॉजिट पे और 2% था टाइम डिपॉजिट पे। इट वॉज वेरिएबल एज पर द रिक्वायरमेंट फेल्ट बाय आरबीआई। सिंस 1962 CRR is variable between 3 to 15%, at least 3% and maximum 15% of the total deposit of individual bank. CRR fulfill needs of a comfortable amount of cash reserve with the banking system in case many customers start withdrawing their deposit and bank have to provide cash against the deposit. Certain times amongst various persons, कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं ना कि जो तुरंत अपनी डिपॉजिट लेने के लिए आ जाते हैं। मान लो अचानक बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ अपनी डिपॉजिट विड्रॉल करने आ गए और बैंक के पास मनी नहीं हो तो क्या करेगा? वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स और बहुत क्राइसिस स्टैंड हो जाएंगे। सो व्हाट, इसीलिए सीआरआर बैंक रिजर्व करके रखती है कि ऐसी कोई कंडीशंस हो तो उस टाइम पर वो उसको हैंडल कर सकें। Besides this is also used as an instrument to control inflations. ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ में आता है। व्हेन CRR इज हायर, commercial bank have lesser deposit money to create a credit. Thus they give fewer loans to people and hence money supply and inflations are curtailed. CRR is reduced in times of deflations and depressions. इन्फ्लेशन का टाइम होगा तो ये हाई हो जाएगा, डिप्रेशन का टाइम है तो ये लो हो जाएगा। क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, लोन और मनी का फ्लो मार्केट में कम करने के लिए। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR. अपार्ट फ्रॉम एन additions to CRR under the Banking Regulation Act 1949, all banks have to maintain equals to and not less than 25% of their total deposit, like a demand and time deposit in the form of cash, gold and unsecured approved securities. किसी भी तरीके की आपके पास सिक्योरिटीज़ हो या कुछ भी हो, बट आपको अपने पास 25% टोटल डिपॉजिट का रिजर्व रखना है। हाउ मेनी परसेंटेज? 25%. A higher SLR divert bank funds from loan and advance to approved government securities and helps to meet government expenditures. On the other hand, it reduces the capacity of banks to create loan and rises the money supply by credit creations, and a lower SLR increase the capacity of banks to create a loan and rises money supply by credit creation. If SLR is higher, people get lesser credit and vice versa. Means what? Here everyone says that whenever SLR is high, जब SLR का रेशियो हाई होता है तो बैंक के पास डिपॉजिट का ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज रिजर्व होता है। अगर रिजर्व होगा तो आप लोगों को लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते और लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। और SLR जब लो होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे क्रेडिट का रेशियो भी हाई हो जाता है। तो SLR के रेशियो के ऊपर क्रेडिट का रेशियो भी डिपेंड करता है। SLR लो है तो क्रेडिट हाई हो जाएगी, SLR हाई है तो क्रेडिट लो हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. Open market operations refers to sale of our purchase or government securities bonds by the RBI in the open market. When general public invites for the purchase of securities which are related to government, that is known as open market operations. When the RBI purchases government bonds from the market, the supply of money in the economy rises, the supply of money in the economic falls. When the RBI sells such bonds in the open market, such operations are undertaken to regulate inflation and
डिप्रेशंस। कई बार ऐसा होता है कि मनी का सप्लाई भी इससे फ्लक्चुएट होता है मार्केट के अंदर परचेज एंड सेल से, परचेजिंग एंड सेलिंग के अंदर फ्लक्चुएट होता है, सो इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन की कंडीशन भी देखने को मिलती है। दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट इशूड इन इंडिया प्रायर टू 1991। 1991 के बाद से ये सिक्योरिटीज जो होती है वो मार्केट में इशू की गई नहीं है। नेक्स्ट आता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई इसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज का भी काम करती है। फॉरेन एक्सचेंज लाइक एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट उसमें बैलेंस होगा तो स्टेरिलाइजेशन की पॉलिसी काम आएगी। स्टेरिलाइजेशन मीन्स वन टाइप ऑफ बैलेंस बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज when there is a excessive inflow of foreign exchange in India, owning of foreign exchange to trade and foreign investment. The RBI indulge in open market sales of government securities equal to the amount of inflow of foreign exchange. This is done to keep balance sheet unchanged, owing to excessive foreign exchange, and thus it sterilizes its balance sheet against external shocks. It buys government bonds if there is a excessive outflow of foreign exchange. कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास फॉरेन कंट्री की जो मनी होती है उसका फ़्लो कम होता है, और कई बार ऐसा होता है कि फॉरेन कंट्री का मनी का फ़्लो ज़्यादा होता है। हमारे इंडियन शेयर मार्केट के अंदर अगर फॉरेन कंट्री की मनी का फ़्लो ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इंडियन की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो शेयर मार्केट के अंदर रखे जाएंगे सेलिंग के लिए, ताकि फॉरेन एक्सचेंज के सामने इंडियन जो करेंसी है वो भी इक्वली हो सके। उसके अलावा कंट्रीज़ के अंदर जो ट्रेडिंग पार्ट्स है, इन्वेस्टमेंट पार्ट्स है, वहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं ताकि इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी का इंडिया के अंदर बैलेंस इक्वली किया जा सके। सो इक्विवेलेंट ऑफ द बोथ द कंट्रीज करेंसी या फॉरेन कंट्री की करेंसी के बराबर अपनी कंट्री की करेंसी में बैलेंस लाने के लिए स्टेरिलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट करती है आरबीआई। तो यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव मेजर्स थे वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।